Good morning, students. Today is your fifth class of Contract Act, or today is your fifth class of Foundation CMA Law class. In these previous classes, already we have discussed what do you mean by law, why the word Indian is used before Contract Act, how Contract Act comes from, there are how many sections in Contract Act, how the Contract Act sections are bifurcated into different types of section, and how sections are abolished from these, how new contract are developed like Sales of Goods Act, Indian Partnership Act, all these laws. So all these things we will discuss. When we have focusing in our contracting act, the main purpose is contract. So what is contract? Contract means an agreement enforceable by law. How section will be provided? As per section 2H of Indian Contract Act 1872 says that an agreement enforceable by law is a contract. After that, we have to bifurcate the word agreement. Agreement means any offer, when any offer or acceptance coming from an enforceable or law, this is known as agreement. So we have discussed all these things. So I will focus on simple topic or 10 essential elements of contract in this class. Before discussing these things, I will tell you there are two types. Generally, offer plus acceptance forms and promise. When promise forming a consideration for each other, that means consideration for each other. If there are two parties, we have to fulfill the consideration of A will fulfill the consideration of B will fulfill the consideration of A. If both the party have consideration for each other, then it will be known as agreement. When one party is agree to fulfill the consideration of another party, but the another party is not in the mind to place the fulfill the consideration of first party, then should not form an agreement. So agreement means any promise forming consideration for each other is known as agreement. Okay. Next one is when agreement enforceable by law. What is enforceable by law? Means anything or any agreement. Agreement means offer plus acceptance plus consideration. These three things, the offer, the acceptance, the consideration, these three things must be done as per our law or on the criteria of law or on the boundary of law. If anyone is out of from this boundary, then we can say that it is not forming a valid agreement, it is not forming a valid contract. Is that okay? So today's class is most important because we have to take part or we have to look after the codes of 10 essential element of a valid contract. As we discussion, section 10 of Indian Contract Act 1872 says that there are 10 main essential elements. Let's check one thing. How many, or some books it was saying that there are 9 elements, some was 8 elements, but as per my perspective there are 10 elements to fulfill the contract so that it is a valid contract. The first thing is offer. A valid contract is an agreement which is binding and enforceable. In a valid contract, all the parties are legally bound to perform the contract. Next one, when necessary, next one, according to section 10, all agreement are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for valid lawful consideration and with a lawful object hereby expressly declared to be void. मतलब ये सिंपल सा चीज बोल रहा है कि हमको क्या करना पड़ेगा, जो 10 एलिमेंट्स ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा. ये जो 10 में एक चीज नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तभी ये क्यों हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमको 10 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए ही चाहिए. अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो हम लोग डिस्कशन किए थे 10 एकदम. हम लोग अभी पॉइंट पे चलते हैं. फर्स्ट वन इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मतलब क्या, हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए थे. ऑफर क्या होता है सेक्शन 2A में डिस्क्राइब था, सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस डिस्क्राइब था, सेक्शन 2C में क्या क्या प्रोमिसी और प्रोमिसर दो वर्ड डिफाइन था, 2D में कंसिडरेशन मेंशन था. ये सब चीज हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए. तो अभी फिलहाल देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होता है. फर्स्ट वन इज फॉर एन एग्रीमेंट there must be a lawful offer by one and lawful acceptance of that
ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। मतलब जब भी एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, द ऑफर मस्ट बी लॉफुल एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी लॉफुल। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन, the term lawful means the offer and acceptance must satisfy the requirements of contract act। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है मुझे पता नहीं है, मतलब हमको जरूरी नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट satisfy the following 10 essential elements or following elements of contract act। contract act जो जो चीज आपको बोल रहा है वो सब चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वैलिड ऑफर नहीं होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन देखो, देयर इज एन एग्जांपल। Jagan said to Sahil that he will sell his cycle to him for rupees 2000। This is an offer. If Sahil accepts this offer, there is an acceptance। Simply it says that there is an offer by Sahil to Jagan for selling his bicycle of rupees 2000। So it is most important, the offer cycle is invalid, it is not an invalid thing। The consideration of rupees 2000 money is also an invalid thing, so that the offer is invalid। Are you okay what I am telling to you? When offerer Jagan is providing an offer to Sahil, then Jagan is providing cycle to him, Sahil will provide rupees 2000। So the matter of rupees cycle and 2000, two things are valid as per eye of law। लॉ के हिसाब से ये दोनों एकदम वैलिड चीज है। दैट्स व्हाई द ऑफर विल बी गुड, द एक्सेप्टेंस विल बी गुड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो एनी ऑफर एंड एनी एक्सेप्टेंस दे मस्ट बी ऑब्लिगेशन बाय लॉ एंड वैलिड इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ लॉ। लॉ के आई में ये एक अच्छा चीज होना चाहिए। अच्छा चीज मतलब लॉफुल चीज होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी होना नहीं चाहिए। सोच लो जगन ने क्या होगा, एक चोरी का साइकिल उसको बेच दिया होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्या उसका प्रोस्पेक्टिव होगा, पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो इसके पास ओनरशिप ही नहीं है। अगर ये ओनरशिप नहीं है तो इसके पास कैसे वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर होगा? नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे। इसका मतलब व्हेन देयर इज ऑफर और एक्सेप्टेंस इज नॉट लॉफुल, it always create an illegal thing। When it is not lawful, it should not be considered on a valid offer and valid acceptance। If offer is not valid, if acceptance is not valid, then how it forms a proper promise? So the promise must be invalid because the offer as well as acceptance is invalid। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा ऑफर वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तभी प्रॉमिस कैसे वैलिड होगा? अगर प्रॉमिस वैलिड नहीं है तो एग्रीमेंट कैसे वैलिड होगा? एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो द फर्स्ट थिंग इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड फॉर ईच अदर। ओके, समझ में आ रहा है? आई विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीगल रिलेशनशिप। व्हाट इज लीगल रिलेशनशिप? When there is an offer and acceptance in, पहले का एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं क्या है लीगल रिलेशनशिप। सोच लो मैंने अच्छे से आपको एक एग्जांपल दिया था। मेरा एक दोस्त का शादी है, वो आके मुझे कार्ड देके चला गया था, बोला कि यू हैव टू अटेंड दिस फंक्शन। मुझे बोला था तू आके अटेंड करना चाहिए। मैंने उसको बोला मैं डेफिनेटली तेरा शादी पे आऊंगा, अटेंड करवाऊंगा। पर उस दिन कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं नहीं जा पाया। मतलब वो मेरे नाम पे स्यू कर देगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर्मिंग एनी लीगल रिलेशनशिप, दिस इज फॉर्मिंग ड्यू टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप। अगर वो मेरा बिजनेस में, सोच लो उसका और मेरा बिजनेस का कुछ अच्छा चीज चल रहा है, मतलब हम दोनों का एक पार्टनरशिप पे बिजनेस चल रहा है, वो अगर मुझे शादी पे नहीं बुलाया तो मैं उसको लीगल रिलेशनशिप तोड़ दूं, सोशल रिलेशनशिप तोड़ पाऊंगा, बट लीगल रिलेशनशिप शुड नॉट बी ब्रेक्ड। सो दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन फॉर्म्ड, it or any promise or any offer or any acceptance will be done, it must be to maintain or create a legal relationship, not if it is a social relationship it should not be done a valid contract। That means that the parties to an agreement must create legal relationship। The word must be focused। मस्ट का मतलब रहना ही रहना चाहिए। अगर वो लीगल रिलेशनशिप के लिए फॉर्म कर रहा है तभी मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो लीगल रिलेशनशिप ना होके सोशल रिलेशनशिप है तभी मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को? सिंपल सा चीज बोल रहा है, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप
agreement of social or domestic nature do not create legal relationship and such cannot give rise to a contract. It is presumed in commercial agreement that parties intend to create an legal relationship. और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ. सोच लो, मेरा एक दोस्त शादी कर रहा है, मेरा बिजनेस है, डीजे का बिजनेस है, ओके. जब शुरू हुआ उसने आके मुझे एक कार्ड भी दिया था कि भाई ये तेरा कार्ड हो गया, तू आके मेरे शादी पे अटेंड करना चाहिए. इट इज एन सोशल रिलेशनशिप. टू मेंटेन आवर सोशल रिलेशनशिप ही इज प्रोवाइडिंग मी एन इनविटेशन कार्ड. दिस इज नॉट टू मेंटेन एन एनी क्रिएट और ऑफिशियल रिलेशनशिप और लीगल रिलेशनशिप. उस टाइम उसने मुझे क्या किया कि बोला कि तू एक काम कर, मैं बाहर से क्यों डीजे लाऊं, तेरे पास है, तू 2000 एडवांस रख, तू ही लेके आना मेरे शादी पे डीजे. अच्छे सुनो, तभी मैंने क्या बोला, भाई तू तो मेरा दोस्त है, तुझे 2000 एडवांस देने की जरूरत नहीं है, हो गया, मैं तेरे शादी पर डीजे लेके जाऊंगा. तभी अगर मैंने नहीं गया डीजे लेके, तो वो मेरे नाम पे स्यू कर देगा. क्यों कर देगा स्यू? दिस इज नॉट टू हैंडल मेंटेन एन सोशल रिलेशनशिप, दिस इज ऑलवेज एन फॉर्मिंग लीगल रिलेशनशिप. समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, अगर वो चीज सोशल रिलेशनशिप में जस्ट थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाई यू हैव टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए वो अगर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोशल रिलेशनशिप. अगर वो बिजनेस के हिसाब से हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको लीगल रिलेशनशिप. So any offer or any acceptance or contract must be taken as a valid contract if there is a legal relationship should be present, social relationship should not be present. Okay, देखो एक एग्जांपल है. ये क्या किया था रोहित ने? दुर्गा को किचन 99 में एक पार्टी देने के लिए वादा किया था कि तू एक काम कर, तू इधर आ, हम लोग मिलके एक पार्टी करते हैं, मैं उसका पैसा दूंगा, मेरा बर्थडे है. रोहित दुर्गा ने क्या बोला? एंड मोमेंट पे सब अरेंजमेंट हो गया था. दुर्गा ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, कि एक अर्जेंट काम हो गया, मैं इसीलिए बाहर जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा. रोहित शुड नॉट sue on दुर्गा बिकॉज इट इज एन सोशल रिलेशनशिप. बर्थडे पार्टी देने के लिए एक लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है. समझ में आ रहा है? टू मेंटेन द सोशल रिलेशनशिप वी हैव टू प्रोवाइड एन पार्टी, नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका इंटेंशन ही नहीं था कि इसके साथ एक बिजनेस मीटिंग करो, बिजनेस मीटिंग में ये चीज हम लोग डिसाइड करेंगे. ये सिंपली एक चीज दुर्गा को किस लिए बुलाया था? डिनर के लिए बुलाया था. बिकॉज ऑफ व्हाई डिनर? बिकॉज देयर इज एन सोशल रिलेशनशिप. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोशली बोथ दुर्गा एंड रोहित आर कनेक्टेड टू ईच अदर. That's why Rohit is inviting to Durga for a beautiful dinner at Kitchen 99. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So the contract can say it is invalid, or contract to be a valid contract we have to think there must be a legal relationship, there must not be a social relationship. समझ में आ रहा है आप लोग को? जो फर्स्ट वन क्या था? वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? लीगल रिलेशनशिप. The parties must be to create a legal relationship. If there is a social relationship, it should not be create a valid contract. To be a valid contract, it is a very much focus that we have to maintain, or we have to draw, or there is an intention to create legal relationship. आपको एक डाउट आएगा कि सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या होता है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब अगर ये नहीं कर रहा है ना, मैं लॉ के हिसाब से जाके इसको तोड़ूंगा, मतलब उसका नाम है एफआईआर दे दूंगा. इसीलिए इसको बोलते हैं इंटेंट टू बी इन क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाएंगे आगे आगे, जब पढ़ते जाएंगे ये सब अच्छे से डिस्कशन कराएंगे. आपको थोड़ा सा अभी फोकस करो कि both parties must be to form and create legal relationship, not to focus on social relationship. If it is a social relationship, it is not a valid contract. If it is a legal relationship, it must be a valid contract. That's all. Okay. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो, लॉफुल कंसिडरेशन बहुत अच्छा चीज है. मैंने आपको चीज बताया था. लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या था? एनीथिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द promisee or promisor, anything we have to do in future, do in past, do in present. जो भी काम कर रहा हूं तीनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंसिडरेशन पढ़ना पड़ेगा. कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 2D. क्या बोल रहा था? अभी मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं तभी कंसिडरेशन माना जाएगा. मैंने पास्ट में कुछ कर दिया था तभी कंसिडरेशन माना जाएगा. अभी कुछ फिलहाल कर रहा हूं तभी भी कंसिडरेशन माना जाएगा. एनीथिंग हैज डन और abstain from doing, anything has do or abstain from doing,
anything is going on or abstain from doing, these whole three will be considered as in consideration. इसका मतलब मैंने पास्ट में कुछ किया था वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा, मैंने प्रेजेंटली कुछ कर रहा हूं तब भी कंसिडरेशन माना जाएगा, फ्यूचर में करूंगा तब भी कंसिडरेशन माना जाएगा. समझ में आ रहा है? सो कंसिडरेशन मींस एनीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ promisee or promisor. We have to provide anything abstain from doing, anything abstain from do, anything abstain will do. All these three things will be known as consideration. समझ में आ रहा है? और एक वर्ड क्या था? consideration मतलब anything in return. सिंपल सा चेंज. consideration means anything in return. अगर मैं तेरे लिए कुछ दे रहा हूं और मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं, you have to do something for me. तुझे मेरे लिए कुछ करवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. अगर तू नहीं कर रहा है तो कंसिडरेशन नहीं है. सिंपल सा चीज देखो क्या बोल रहा है. द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, पहला क्या था रे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सेकंड क्या था रे? लॉफुल, सॉरी सेकंड वन क्या था? फर्स्ट वन था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ओके, नेक्स्ट वन क्या था? क्रिएट टू फॉर्म एन लीगल रिलेशनशिप. थर्ड वन क्या है? वैलिड कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन. देखो क्या बोल रहा है. फर्स्ट वन इज the third essential of an valid contract is the presence of consideration. तुम बोलोगे सर हमेशा कंसिडरेशन जरूरी है. कहां जरूरी नहीं है? 5 मिनट 2 मिनट में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी इतना तक दिमाग मत लो. जो बोल रहा है सिंपल सा चीज देखो क्या बोल रहा है. the third essential element of an valid contract, the third essential of a valid contract is the presence of consideration. Consideration means something in return. We have to focus on that word, something in return. अगर मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, तेरा रिटर्न में मुझे भी कुछ आना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन. सोच लो मैंने इसको साइकिल दे दिया. किसने? रोहित ने उसको दिया था साइकिल. तो तभी वो भी कुछ रिटर्न में दे रहा था. क्या दे रहा था? तभी उधर रिटर्न में पैसा दे रहा था 2000 रुपीज. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस वन इज टू बी कंसिडरेशन. मतलब ये इसको साइकिल दे रहा है, ये इसको 2000 दे रहा है, तो इसका कंसिडरेशन साइकिल हो गया, इसका कंसिडरेशन 2000 हो गया. समझ में आ रहा है? समथिंग इन रिटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कंसिडरेशन सिंपली मींस दैट समथिंग इन रिटर्न. क्लियर? नेक्स्ट वन, इट मे बी सम बेनिफिट टू द पार्टी. ये सबसे ज्यादा जरूरी है. तुम बोलोगे सर बेनिफिट टू द पार्टी होना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग थोड़े बाद पढ़ेंगे, जब बेनिफिट ऑफ पार्टी नहीं होता है ना, ये वर्ड बहुत कुछ बताता है. कैसे? सुनो, अगर ये बेनिफिट ऑफ पार्टी नहीं हो रहा है ना, कभी कभी ये इलीगल मैटर शुरू करवा देता है. जैसे सोच लो मैं क्या कर रहा हूं, एक मेरे दुश्मन था, मैं मेरा फ्रेंड्स को बुलाया कि तू एक काम कर, तू इधर आ, मेरा जो दुश्मन है उसको शूट करके उड़ा दे. देखो अच्छे सुनो, अगर मैं इसको शूट कर रहा हूं, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, अच्छे सुनो, उसका लॉस हो रहा है, तभी इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. हम लोग बाद में ये सब चीज डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा फोकस करो. बेनिफिट ऑफ, इट मे बी सम बेनिफिट टू अदर पार्ट, इट मे बी सम बेनिफिट टू द पार्टी. मतलब वो पार्टी को कुछ बेनिफिट होना चाहिए. मतलब ये नहीं बोल रहा है कि कंपलसरी. सोच लो मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ खरीद रहा हूं, तभी तो मेरा बेनिफिट नहीं हो रहा है, मेरा बच्चे का बेनिफिट हो रहा है, तभी मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं, पर बेनिफिट होना जरूरी है. उसका बेनिफिट में मेरा बेनिफिट होना जरूरी है. और किसी का नुकसान हो रहा है तो तभी हम लोग पढ़ेंगे, एक लास्ट में पॉइंट आएगा, पब्लिक एडमिस, कुछ पब्लिक का किसी का लॉस हो रहा है, तभी इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. क्या आएगा? वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे. सो क्या बोल रहा है अच्छे से देखो. द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन, एंड कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न. इट मे बी सम बेनिफिट टू द पार्टी. Consideration has been defined as the price paid by one party for the promisee of the other. एक चीज के लिए एक बंदा और एक बंदा को जितना पैसा दे रहा है, वो पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन. सिंपल सा चीज. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल only when both the parties give something or give something, get something or give something. सिंपल सा चीज. कभी हम लोग पढ़े थे when an agreement enforceable by law then it is an contract. okay, उसके पहले क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. क्या था? प्रॉमिस. when promise forming consideration for each other is an agreement. वो बोल रहा था अगर प्रॉमिस बना, प्रॉमिस के बाद दोनों का कंसिडरेशन फुलफिल हो रहा है, कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर,
इसका कंसिडरेशन फुलफिल हो रहा है, इसका कंसिडरेशन फुलफिल हो रहा है, तब भी हम लोग बोलेंगे इट इज एन वैलिड एग्रीमेंट. सो द वर्ड मस्ट बी फोकस, द समथिंग गिवन or obtained is parties for promisee and it is called consideration. और ये क्या बोल रहा है, an agreement is enforceable only when both the parties get something and give something. वो कुछ पा रहा है, get something, give something, वो कुछ दे रहा है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, this is an contract. So to maintain or to forming an contract, it is most important that the contract must be having lawful consideration. अगर इसका लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल में, गणेश एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू नारायण फॉर ₹10 lakh. Is the consideration for Ganesh promise to sell his house and Ganesh promise to sell the house is the consideration for Narayan promise to pay ₹10 lakh. सिंपल सा चीज बोल रहा है, ये इसका बिल्डिंग या इसका हाउस इसको बेच रहा है नारायण को, इसका कंसिडरेशन क्या है, सिंपल सा चीज 10 लाख है, मतलब कंसिडरेशन ऑफ गणेश इज ₹10 lakh, कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर नारायण इज द हाउस. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर गणेश इज ₹10 lakh, मैटर ऑफ मनी इज ₹10 lakh, इसको 10 लाख चाहिए, इसको क्या चाहिए, हाउस चाहिए. सो द कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर गणेश इज ₹10 lakh, द कंसिडरेशन ऑफ मिस्टर नारायण इज रुपीस और इज द हाउस. समझ में आ रहा है, बिकॉज द मैटर ऑफ हाउस और द मैटर ऑफ 10 lakh is an valid consideration, it is not an invalid. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल को चलो क्या बोल रहा है, रावण एंड दुर्योधन agreed to deal a smuggled goods, it is forbidden by law because deal with unlawful consideration. सोच लो ये क्या कर रहा है, स्मगल्ड गुड्स जो होता है, और दिस इज ए नॉट वैलिड गुड्स, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग ये ट्रांजैक्शन नहीं करवाता है, ये स्मगल्ड गुड्स है. ओके समझ में आ रहा है. सो व्हेन रावण इज डूइंग एन बिजनेस विद दुर्योधन, द मनी रुपीस, सोच लो इनका रिटर्न में ये क्या कर रहा है, ये रावण इसको गन दे रहा है, ये क्या कर रहा है 10 लाख पाउंड दे रहा है और 10 लाख रुपीस दे रहा है. जो जब ये 10 लाख रुपीस देगा तभी ये मनी इज वैलिड और द रावण's money or Ravan's consideration is valid, but Duryodhan's consideration is not valid. When both party forming not valid consideration, it is not forming an agreement and agreement is not there, contract should not be there. So ये बोल रहा है जो consideration part है वो must be क्या होना चाहिए, valid होना चाहिए, lawful होना चाहिए. अगर ये unlawful है तभी हमारा business में unlawful consideration हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना. वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट. आप लोग का डाउट मैं अभी क्लियर करवाता हूं. वैसे आप लोग सोचे होंगे सर जहां कंसिडरेशन ना होता है अगर वहां हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा. फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा. मैं बोलूंगा वैलिड होगा तो तुम पूछोगे सर अभी तो आप ही बोले कि कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट होना, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना ही चाहिए. अगर कंसिडरेशन एनी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, अगर द मैटर ऑफ कंसिडरेशन बीच में नहीं है तो वो प्रॉमिस एग्रीमेंट नहीं होगा. आप ही अभी बोल रहे हो कि कंसिडरेशन हो या ना हो तभी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छे से सुनो, in every law of India or in every law everywhere the world, some exceptions are there to maintain the proper law. और हमको लॉ को बहुत रिजिड रखना नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए. रिजिड रखना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रिमिनल लॉ को रिजिड रखना चाहिए. एज पर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू मेंटेन आवर लॉ फ्लेक्सिबल so that as per our business requirement it may be done by the viewer promisor or promisee. okay सिंपल सा चीज बोल रहा है, छोड़ो बाद में देखेंगे वो. अभी ये क्या बोल रहा है देखो, there is an exception to no consideration no contract. मतलब अगर वहां कंसिडरेशन हो या ना हो तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. सिंपल सा चीज. अभी आप लोग को पता होगा मिस्टर अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी दोनों के बारे में पता होगा. उनका जो बिजनेस था वो बिजनेस दो हिस्सों में तोड़ दिया गया. अच्छे सुनो, ओके जब ये तोड़ दिया गया the whole business of
टेलीकम्युनिकेशन इन 2009 विल गो टू दी अनिल अंबानी हाउस। मतलब अनिल अंबानी जी को पूरा मिल गया टेलीकम्युनिकेशन पार्ट, और बाकी जो बिजनेस पेट्रोल बिजनेस था और बाकी बिजनेस किसको मिल गया? मुकेश अंबानी जी को मिल गया। तब भी देखो, तुम बोलोगे सर इसके लिए उसके जो पिताजी का बिजनेस था वो जब तोड़ दिए तभी तो कंसिडरेशन किसी को नहीं दिए। और सिंप्लीफाइड कर देता हूं एकदम एग्जांपल, मेरे पापा के नाम पे 5 जमीन है, वो बोले एक काम कर, तू 2 जमीन ले ले और तेरा छोटा भाई के नाम 3 जमीन कर देते हैं। ओके, तब भी मैं पापा को पैसा दूंगा कि पापा मार्केट वैल्यू कितना है 2 जमीन का? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख है, आप 2 लाख लो, मेरे नाम पे एग्रीमेंट करो। मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज in some cases or some exceptions to law are there from where the no consideration forming an valid contract, मतलब जहां कंसिडरेशन भी नहीं होगा पर इसको हमको क्या मानना पड़ेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। we'll discuss these exceptions. the first point is no consideration no contract exceptions। मतलब मैंने आपको बोला था when offer plus acceptance promise, when promise forming and consideration for each other is known as agreement, an agreement when enforceable by law is an contract। so आपको क्या समझना चाहिए? when offer plus acceptance मिल रहा है तभी हमारा क्या होगा? प्रॉमिस होगा। when promise is forming consideration for each other, I will focus on the word consideration। जब प्रॉमिस कंसिडरेशन आएगा तभी एग्रीमेंट आएगा। इसका मतलब जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं होगा तब एग्रीमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल सा चीज बोल रहा है, when promise forming consideration for each other is an agreement, that simply means that when there is no consideration, there is no agreement, there is no contract। okay, is that clear? but for this rule some exception are there। what are the exceptions we will discuss। इसका exception का मतलब क्या? हम लोग बोल रहे हैं कि consideration नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई क्या बोल रहा है, इसका एक्सेप्शन मतलब कंसिडरेशन ना हो तभी इसको हम वैलिड एग्रीमेंट बोलेंगे, कंसिडरेशन ना हो तब भी हम लोग इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। कहां बोलेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देखो क्या बोल रहा है ये, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, मतलब हम लोग बोल रहे हैं जनरली जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बट ऐसा भी कुछ केस है जहां कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हमको क्या मानना पड़ेगा? इट इज एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट वन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देयर इज अ लव एंड अफेक्शन बिटवीन माय फादर एंड मी और एंड टू सन्स ऑफ माय फादर, मतलब मेरे लिए और मेरे भाई के लिए उनके पास कुछ लव एंड अफेक्शन है, प्यार है, तभी मैं जो ट्रांसफर कर रहा हूं बिल्डिंग और लैंड और समथिंग एल्स, इट मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल सा चीज क्या बोल रहा है कि वहां लव एंड अफेक्शन का बात आता है तभी कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन ना हो, इट मस्ट बी फॉर्मिंग एन कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द पार्टीज। फिर से बोल रहा हूं, जब मेरे पेरेंट्स का बात आया था वो मुझे फ्री में ट्रांसफर करवाए, तुम बोलोगे सर कंसिडरेशन नहीं था तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। वो ट्रांसफर क्यों वैलिड होगा? बिकॉज देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ वर्ड लव एंड अफेक्शन, बिकॉज माय फादर इज लविंग मी, दैट्स व्हाई ही इज गिफ्टेड टू मी दिस थिंग्स। ओके, समझ में आ रहा है? सो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है? लव एंड अफेक्शन। जहां लव एंड अफेक्शन है तहां कंसिडरेशन एक पार्टी फुलफिल करे और एक पार्टी फुलफिल ना करे तभी कुछ फिलहाल प्रॉब्लम नहीं होगा। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, कंपेंसेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। तुम बोलोगे सर कंपेंसेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड क्या होता है? मैं एक इंस्टीट्यूशन में आके क्लास कर रहा हूं, मैंने क्लास ले लिया, मैं जाके डायरेक्टर सर को पैसा मांगा, बोला कि सर मैंने क्लास करवा दिया और मुझे 500 चाहिए। डायरेक्टर सर बोलेंगे भाई मैं आपको अगर 500 दूं आप मुझे क्या दे रहे? मैं बोलूं सर मैंने अभी जो क्लास जाके आया ना, वो बोलेगा कि नहीं भाई समथिंग इन रिटर्न हमको होना चाहिए। इसका मतलब व्हेन सर्विस इज रेंडेड टू एन एनी प्लेस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन गुड्स, मतलब मैं उसका हमेशा गुड्स में ही दूंगा इसका मान नहीं है, मतलब हमेशा गुड इन रिटर्न ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ पैसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो सर्विस दिया वो सर्विस भी किस स्टेट में माना जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट माना जाएगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड ऑप्शन क्या है? एनी सर्विस रेंडेड बाय एनी एम्प्लॉयर बाय एनी पर्सन एल्स। अगर कोई पर्सन और कोई आदमी
क्या कर रहा है, एक किसी को सर्विस दे रहा है, तभी वो सर्विस दे, मतलब और उसको कुछ देने की समथिंग इन रिटर्न नहीं चाहिए, वो सर्विस इज इन समथिंग इन रिटर्न, वो पैसा दे रहा है, मैं इसको सर्विस दे रहा हूँ और कुछ रिटर्न में देना चाहिए, गुड्स, ये हमेशा मायने नहीं रखता है। मतलब एनी सर्विस रेंडेड टू एनीबॉडी इज ट्रीटेड एज एन कंसिडरेशन। मेरा मतलब क्या था, देखो जैसे मैंने बोला कि मैंने जो क्लास करके दिया, दिस क्लास और दिस 1 आवर इज एन कंसिडरेशन फॉर मी, मतलब मेरे डायरेक्टर को मैंने 1 आवर का क्लास रिकॉर्डिंग करके दिया, मतलब दिस इज ट्रीटेड एज एन कंसिडरेशन फॉर माय डायरेक्टर, एंड रुपीज 2000 और रुपीज 5000 इज फॉर कंसिडरेशन फॉर मी, सो 5000 इज कंसिडरेशन फॉर मी। इसका मतलब उसका सर्विस जो है इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन गुड एंड कंसिडरेशन फॉर माय डायरेक्टर, एंड रुपीज 5000 इज कंसिडरेशन फॉर मी, मतलब मेरा जो कंसिडरेशन होगा 5000 होगा, मेरे जो डायरेक्टर सर का कंसिडरेशन होगा उनका क्या होगा, द रिकॉर्डिंग क्लास ऑफ 1 आवर इज द कंसिडरेशन फॉर मी। मतलब any service is rendered to any person will be treated as an valid contract and will be treated as an consideration the party। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वन क्या बोला, नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट वन क्या बोला, नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन, if there is an presence of natural law and affection, it whether consideration will be there or not consideration will be there, it is not forming anything, it must create an valid contract। मतलब वो केस में कंसिडरेशन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एनी सर्विस रेंडेड बाय एनी पर्सन, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं वो भी कंसिडरेशन के हिसाब से माना जाएगा। फिर से मैं वो नहीं बोल पाया कि मैं तुझे 10,000 दे रहा हूं, तू भी मुझे आप भी मुझे कुछ दीजिए, नहीं बोल पाएगा। मैंने जब वो क्लास पकड़ा दिया वो कंसिडरेशन के हिसाब से माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बियर डेप्ट, ये भी एक चीज आएगा, एजेंट हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, वेयर ए प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय एन ऑथराइज्ड एजेंट is made to pay debt beared by the limitations is valid without consideration। मतलब जब एक प्रिंसिपल का एजेंट का रिलेशनशिप होता है, जब मैंने इसको गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, ये वन टाइप ऑफ सर्विस ही है। अच्छे सुनो, अगर मैं मेरा एजेंट है, मैंने इसको, मेरा लैपटॉप का बिजनेस है, मैंने उसको 10 लैपटॉप दे दिया कि तू एक काम कर उसको बेच क्या, मतलब देखो अच्छे से सुनो, मैंने जब उसको 10 लैपटॉप दिया, there is an agreement between my agent and me। what मतलब ये सुनो, मैंने जब एग्रीमेंट कर रहा हूं, तुम बोलोगे सर अगर ये जो लैपटॉप आपने दे दिया इसको, आपको तो वो कुछ नहीं दे रहा है, अभी कंसिडरेशन का फॉर्म याद करो, अभी दे, पास्ट में दिया था और फ्यूचर में दोगा और फ्यूचर में देगा, तीन चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। इसका मतलब ये अभी लैपटॉप ले रहा है, जो पैसा रिटर्न करके लाएगा वो मुझे ही देगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां क्या बोला है, देखो टाइम बियर डेप्ट, मतलब हम लोग इन रिटर्न में कुछ दे रहे हैं। जैसे मैंने एक लोन मैंने बैंक से लाया, अच्छे सुनो, 1 लाख का लोन लाया, तभी मैं बोला कि 1 ईयर के लास्ट में 1 लाख प्लस 10,000 मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1.1 लाख देना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर 10,000 आप क्यों दिए, बैंक वाला तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। The time period given or the time period given to me is in consideration for me and rupees 10,000 is consideration for the bank। अच्छे से समझा करो, मतलब टाइम also being is consideration for me। जैसे मैं इधर आके बैठा हूं, आज करंट चला गया, तो मैं बोलूंगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इधर आया था, मैंने तो मेरा टाइम इधर इन्वेस्टमेंट किया, आपको तो मुझे पैसा देना चाहिए। इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, when time debt is there the consideration or return on that thing should be treated as an valid consideration। मतलब जब भी टाइम आएगा वो टाइम को भी हमको क्या लेना पड़ेगा, वैलिड कंसिडरेशन के लेना पड़ेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज लोन अप्रूव्ड बाय एन बैंक। जब मैं बैंक से लोन लाता हूं, 1 साल के लिए मुझे कितना देना पड़ता है, 10,000 या 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो द 10,000 and 15,000 consideration is for the using for money for a specific period of time। जो 1 साल में मैंने पूरा काम करवाया, 10,000 वो 1 लाख पूरा मेरे पास रखा, और 1 साल का टाइम गैप जो हुआ, वो टाइम गैप को हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। द टाइम गैप इज कंसिडरेशन फॉर मी, द रुपीज 10,000 15,000 इज द कंसिडरेशन ऑफ बैंक। समझ में आ रहा है? So these are the three common no consideration no contract का exception। first one क्या था, natural law and affection। in case of natural law and affection whether consideration is present or not, it is not create any forming consideration, whether consideration will present or not,
it will forming an valid contract. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, एनी सर्विस रेंडेड टू एनीबॉडी. मैंने जब सर्विस दे रहा हूं इट इज लाइक एन गुड्स. लास्ट पॉइंट इज टाइम बियर डेप्ट. मतलब मैंने जब डेप्ट या बैंक से लोन लेता हूं, द टाइम गैप बिटवीन दीज थिंग्स विल बी provided to win some amount of money. This is also treated as an no consideration no contract exceptions. Is that clear? फिलहाल हम लोग अभी क्या क्या पढ़े देखो. फर्स्ट वन पढ़े ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट वन क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप. पॉइंट नंबर 3 इज वैलिड कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन. नेक्स्ट आई विल फोकस ऑन कैपेसिटी ऑफ पार्टी. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब पावर हैविंग टू डू समथिंग. मेरे पास कैपेसिटी है मतलब मेरे पास पावर है वो काम करने के लिए. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब वो वेदर इट इज एन वैलिड पर्सन टू एंटर टू एन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. मतलब जैसे सोच लो मैं एक बिजनेस के अंदर फैक्ट्री के अंदर जाना चाहता हूं. मतलब इफ आई विल ए मैनेजर or whether I will an employee or whether I will a person to capacity to enter that person. मतलब मैं कैपेसिटी हूं, मैं ऑथराइज हूं, तभी मैं जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा. इसीलिए ये भी बोल रहा है कि आप हमेशा छोटा आदमी, बड़ा आदमी और कोई भी आदमी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाएगा. कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक कैपेसिटी होना चाहिए. क्या क्या कैपेसिटी है, किसके पास कैपेसिटी है, वो हम लोग फिलहाल देखते हैं. देखो क्या बोल रहा है ये. An agreement is enforceable only if it is entered into by parties who possess contractual capacity. मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है. इट मीन्स दैट द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट मतलब ऑथराइज्ड, अलाउबल. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उनके पास अलाउबल रूल होना चाहिए. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, in order to be competent to contract, the parties must be the age of majority. Age of majority क्या होता है? Next one is age of majority is the most important part because the age of majority is 18. अगर तुम्हारे पास 18 नहीं हुआ है और तुमको 18 नहीं हुआ है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में उसका डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग कैसे हो जाता है. एंड ऑफ एनी अनसाउंड माइंड and must not be disqualified for containing by any law to which they are subject. सिंपल सा चीज बोल रहा है कि ये देखो हमारा फॉर्मिंग क्या था रे, कैपेसिटी ऑफ पार्टी. मतलब किस किस के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का वैलिड प्रूफ है और वो लोग कर सकते हैं. सिंपल सा चीज, 3 आदमी को छोड़ के और 3 को छोड़ के और बाकी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. फिर से बोल रहा हूं, these except these 3 persons. फिर से बोल रहा हूं, एक्सेप्ट दीज 3 persons. ये 3 चीज को छोड़ के, 3 आदमी को छोड़ के और बाकी सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. व्हाट आर दी 3 persons? फर्स्ट वन इज एनी पर्सन हैविंग मेजॉरिटी, सॉरी एनी पर्सन इज नॉट हैविंग मेजॉरिटी मतलब माइनर. सो माइनर कैन नॉट फॉर्म एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज एनी पर्सन who is not, first one is minor, second one is any person not forming और disqualified by law. disqualified by law क्या होता है, एक सेकंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे. पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट इज द अनसाउंड माइंड. मतलब फर्स्ट वन बोल रहा है कि अगर तू माइनर है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. सेकंड चीज बोल रहा है इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ को तुमने मना किया कि तुमको करना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, तभी भी इसको माना नहीं जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट पॉइंट इज एनी अनसाउंड माइंड. मतलब जो जिसको हम लोग पागल बोलते हैं, पागल को एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड नहीं है. फिर से बोल रहा हूं, 3 आदमी. फर्स्ट वन इज माइनर. माइनर इज नॉट हैविंग डू एनी कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. माइनर के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा. आप हम लोग एक पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे, द पार्टनर or the valid partner is there or the minor should be an partner on benefits only. जब बेनिफिट आएगा तभी पार्टनर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वैलिड पार्टनर माना जाएगा. जब लॉस आएगा तभी माना नहीं जाएगा. ये वो लोग बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे. एक सिंपल सा चीज हम लोग पढ़ते हैं. ये क्या बोल रहा है, एक 3 के पास कैपेसिटी नहीं है, ये 3 को छोड़ के हम सबके पास कैपेसिटी है. फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट वन इज माइनर पर्सन, सेकंड वन इज अनसाउंड माइंड,
थर्ड वन इज एनी डिस्क्वालिफाइड पर्सन। डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या होता है, देखो जैसे हमारा लॉ में मेंशन है ये सब लोग और ये सब आदमी डिस्क्वालिफाइड पर्सन है। अच्छे सुनो, ये सब आदमी डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तभी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब डिस्क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन होता है, जैसे एक मुजरिम जेल में है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सिंपल सा बात। जैसे एक हम लोग किस क्या बोलेंगे उसको, बैंक रेपुटेशन, जिसका लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट और बैंक रेपुटेशन, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट करे तभी वैलिड नहीं है। इसको तुम बोलोगे सर अगर ऐसा है तो माइनर को और अनसाउंड माइंड को दो अलग अलग क्यों, ये पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 में क्यों बोला, पॉइंट नंबर 3 में बोल देता कि एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ बिकॉज दिस पर्सन आल्सो हैविंग डिस्क्वालिफाइड लॉ। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। सुनो, लॉ एक ऐसा चीज है, आपको एक एक वर्ड तोड़ के पढ़ना पड़ेगा तभी मजा आएगा। जैसे मैं बोला अभी कि जो दो चीज था, माइनर एंड नेक्स्ट पार्टी इज अनसाउंड माइंड, ये दोनों को इसमें तो जोड़ देना होना चाहिए था ना। अगर मैंने डिस्क्वालिफाइड लॉ के हिसाब से जोड़ देता तो ये 3 पॉइंट मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, एक पढ़ देता डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बात खत्म। क्यों अलग किया, देखो इन सम केसेस माइनर इज आल्सो कैपेसिटी टू डू एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने बोला कि माइनर को कभी है जब इसके पास वैलिड एग्रीमेंट और उसके पास वैलिड बेनिफिट का सर्टिफिकेट है। मतलब एनी पर्सन गेटिंग सम बेनिफिट टू द माइनर, जब माइनर को बेनिफिट मिल रहा है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अभी नॉट वैलिड है मतलब वो पार्टनर, मतलब एनी लॉस विल बी देयर, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन वैलिड पार्टनर एंड शुड नॉट बी गेटिंग एनी प्रॉफिट्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सा चीज। नेक्स्ट क्या बोला, अनसाउंड माइंड। लॉ का ये चीज एकदम मतलब अजीब सा चीज है। अनसाउंड माइंड मतलब अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट, but any person or any unsound mind at the time of sound stage if doing any contract is invalid। मतलब सोच लो, तुम जैसे बोलोगे कि अनसाउंड माइंड पर्सन है तभी वो लाइफ में जितना कॉन्ट्रैक्ट किया वो इनवैलिड हो जाएगा, नहीं होगा। जब वो साउंड माइंड था तभी जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवैलिड। जब ये अनसाउंड स्टेज में है तब जो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी इसको हम बोलेंगे इनवैलिड। मतलब competently or conclusion of capacity parties there except these three people, अच्छे सुनो, expect these three people all are allowable to do an valid contract or all are allowable to do an capacity to do entering into an contract। The first person is minor person, if there is a minor person he should not any authority to do a valid contract, he cannot make a valid contract, point number 1। Point number 2 is unsound mind, any unsound mind is there, it is also invalid to do make an contract। Point number 3 is any person disqualified by law, मतलब जो भी बंदा लॉ ने बोल दिया कि तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एक वर्ड आएगा, जैसे देखो इंडिया और पाकिस्तान में अभी बिजनेस का अच्छा रिलेशन चल रहा है, हमने जो जो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा इसको हम क्या बोलते हैं पता है क्या, फॉरेन एनिमी कुछ बोलते हैं। फॉरेन एनिमी क्या है, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप अभी अच्छा चल रहा है, इस टाइम पे अगर तुम कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फुल्ली वैलिड। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप बिगड़ गया, जैसे सोच लो कि इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस करेगा उसका बिजनेस डिस्क्वालिफाइड है। मतलब जब इंडिया ने बोल दिया और एट द टाइम ऑफ वॉर सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट करवा दोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एनी लॉ डिस्क्वालिफाइड और एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ is also disqualified as an capacity of party। मतलब लॉ जब बोल रहा है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो तभी आप लोग डिस्क्वालीफाई हो, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? देखो नीचे क्या है, एम ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंटर्स टू एन एग्रीमेंट with S to sell his house for rupees 2 lakhs, it is not a valid contract because M is not competent to contract। सिंपल सा चीज, एक पर्सन है M, ये अनसाउंड माइंड है, मतलब इसका माइंड स्टेबिलिटी सही नहीं है, इसके पेरेंट्स और सॉरी इसका बच्चा लोग किधर गए थे, ये क्या किया, इसके पास आया एक एग्रीमेंट करवा दिया कि मेरे को ये घर भेज दे, मैं तुझे कितना दे रहा हूँ 2 लाख दे रहा हूँ, तभी इसको 2 लाख दे दिया।
ये आके इधर घर में घुस गया, घर में रहने लगा, तभी भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन सिंपल सच इज सी इज एन अनसाउंड माइंड, सो सी इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग और फॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबिलिटी नहीं है। अगर ये जो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द स्टेज ऑफ अनसाउंड माइंड, all will be treated as invalid contract. So for invalid contract, except three people, all are for doing valid contract. First one is minor, minor जो भी contract करेगा invalid, unsound mind जो भी contract करेगा invalid, all the persons disqualified by law, law ने जिसको जिसको मना किया था, अगर वो लोग आके contract करेंगे तभी भी वो क्या होगा, disqualified होगा। ओके फटाफट हम लोग क्या पढ़े थे आज के क्लास में, फटाफट डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्या पढ़े हम लोग, 10 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है, कौन सा सेक्शन में मेंशन है, सेक्शन 10 में मेंशन है। सेक्शन 10 में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसका पहला पॉइंट क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द लॉफुल ऑफर, व्हाट इज द लॉफुल एक्सेप्टेंस, द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी लॉफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी पर्सन, और नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कैपेसिटी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप with their presence in social relationship or forming in social relationship should not make an valid contract. For forming an valid contract there must be an intention, मैं क्या वर्ड कर रहा हूं यूज देखो, intention to create legal relationship। जब ये दोनों का इंटेंशन एक है कि मेरा क्या करना पड़ेगा, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, बिजनेस का कुछ डिसीजन लेना है, कुछ कंसिडरेशन है, ये अगर चीज सब है तो तभी हम लोग क्या बोलेंगे, और इसका मतलब इफ एनी पर्सन इज हैविंग लॉफुल, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट क्या था रे, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा बिजनेस का क्रिएट टू इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तभी क्या आएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आएगा। पॉइंट नंबर 3 इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, बोथ द पार्टीज विल गेट एंड विल गिव समथिंग, मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए, मैं भी कुछ देना चाहूंगा, मतलब I will get something and I will give something. That's it, forming and consideration. When I will get something or I will not give anything, that is not a valid contract. So for doing a business or for doing a valid contract or valid agreement or promise forming consideration for each other, मतलब उसको कुछ मिलना चाहिए, वो कुछ देना चाहिए। अगर उसको खाली मिल रहा है और वो दे रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। The business the objective of business or the consideration of these things must be is having lawful consideration। जब हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे, क्या एग्जाम्पल पढ़े थे कि जब एक कंसिडरेशन क्या हो रहा है, उसका वैलिड था, मेरा वैलिड नहीं था, 2 लाख उसका वैलिड था, जो गन ने स्मगल किया वो भी गुड्स क्या था, वैलिड नहीं था, तभी इसको हम क्या मानेंगे, इनवैलिड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़े, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां कंसिडरेशन नहीं था एग्रीमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पर उसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है, फर्स्ट वन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन whether consideration is paid or not, it should not create any problem, it forms a valid contract। मतलब lawful मतलब love and affection में मेरे पास consideration हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होगा, contract होगा। पॉइंट नंबर 2 इज एनी सर्विस रेंडेड बाय एनी पर्सन, मतलब मैं अगर कुछ सर्विस दे रहा हूं तभी उसको क्या माना जाएगा, गुड्स के हिसाब से माना जाएगा, उसके लिए भी पैसा मिलेगा, तभी क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टाइम डेप्थ। जैसे हम लोग बोलते हैं मैंने 1 साल के लिए लोन लिया था, उसके लिए 10,000 एक्स्ट्रा मुझे चुकाना पड़ रहा है, इसीलिए क्या होगा, मैंने उसका टाइम लिया, इसीलिए मुझे क्या होगा, उसको चुकाना पड़ेगा, सिंपल सा चीज। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट, कि लास्ट पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्या बोल रहा है, 3 person is not having any capacity to doing entering into an contract except these 3 people, all are having an valid to or all are having capacity to doing any contract। who are these 3 peoples, minor person अगर minor है उसको contract करने के लिए capacity नहीं है, unsound mind है तभी उसके पास capacity नहीं है, any person having object or unlawful, मतलब लॉ ने इसको मना किया था, एनी पर्सन फॉरगिवन बाय लॉ, लॉ ने इसको मना किया था तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब और एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो जो पर्सन लॉ के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड है वो लोग भी क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट दीज 3 people, all are allowed to do any valid contract।
ओके, फिलहाल हम लोग इसमें से क्लास आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो चीज है हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।